Okay, so the first adjustment is of closing stock. आपको मालूम है closing stock is there in the adjustments. Mostly it is the first adjustment, number one. So Rohini, tell me beta, what will be the two effects of closing stock? Sir, trading account credit side and balance sheet asset side. Trading account credit side and balance sheet asset side. Very good, perfectly fine. Now second adjustment, for example, we will see of outstanding expenses. So outstanding expenses, I will give you one example. For example, salary outstanding. So what will you do with this? Second term is Omkar. If you can tell me, Omkar बताओ बेटा, salary outstanding है, इसके दो इफेक्ट क्या होंगे? Sir, in profit and loss account, uh, we will add salaries. Very good. Profit and loss account में we will do plus in salaries. और दूसरा इफेक्ट क्या आएगा बेटा? Sir, in balance sheet outstanding salaries, liability side. वेरी गुड, एक्सीलेंट. बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में जाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरीज. तो ऐसा कोई भी एक्सपेंस हो, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट, इंश्योरेंस, कोई भी एक्सपेंस, ये ऐसे दो इफेक्ट्स आए. थर्ड एक हम देखते हैं बेटे, अभी ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया ना. अब हम देखते हैं बेटा प्रीपेड एक्सपेंसेस. Now, what will be the two adjustments, two effects of adjustment? अगर समझो एक adjustment है आपका final accounts में, prepaid expenses. Next turn is of Pratiksha. If you can tell me beta. So in prepaid expenses, for example, Pratiksha, 1 minute. I will give you example. For example, salary is there which is prepaid. Now, what will be the effect? So first we'll subtract it from the profit and loss account. Very good. In profit and loss account, that expense is there. For example, salary. From that we will subtract. Why we will subtract? Because it is paid for the coming period. Okay, it is prepaid. So we will subtract. And another effect? In balance sheet, we will make an entry on asset side. Very good. Asset, because any expense, if you have paid in advance, that is your asset. So try to understand what is the difference between outstanding expense and outstanding prepaid expense. Remember this. Now next we will see. Third, for example, income received in advance. Income received in advance. I will give you an example. Income received in advance. तो बताओ बेटा इसके क्या दो इफेक्ट हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल आपको इंटरेस्ट मिलना था, एक इनकम थी इंटरेस्ट, वो आपको एडवांस में मिल गया, तो इसका क्या इफेक्ट आएगा? एंड हु विल टेल मी? अभिषेक, यू टेल मी बेटा. गाइस, मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा, और बाकी सब म्यूट पे रहोगे. अंकुर भी कनेक्ट हो गया हमको. अंकुर फ्रॉम सिम्बोसिस कनेक्टेड अस. अंकुर, ओके. नेक्स्ट टर्न इज अभिषेक मोहिते. बेटा इनकम रिसीव्ड इन एडवांस अगर हमको हो गया, तो उसके दो इफेक्ट क्या होंगे बेटा? इनकम, ओके 1 मिनट. इनकम रिसीव्ड इन एडवांस को आप ऐसा भी बोल सकते हो, इट इज प्री रिसीव्ड इनकम. कौन सा? प्री रिसीव्ड इनकम. जो आपको नेक्स्ट ईयर की इनकम थी वो आपको अभी मिल गई. अब बताओ बेटा.
or that is our liability, so we will make an entry in the liability side of balance sheet. वन मिनट, बैलेंस शीट में Liability side. लाइबिलिटी साइड, वेरी गुड, क्योंकि जो भी आपको इनकम एडवांस में मिलेगी बेटा वो आपके लिए कर्जा है, वो आपको एडवांस में मिला, सो इट विल गो टू लाइबिलिटी साइड. एंड सेकंड इफेक्ट बेटे, And we will subtract from salary account, which is in debit side of profit and loss account. नहीं, देख बेटा, सैलरी डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सैलरी इज एक्सपेंस. वी आर टॉकिंग अबाउट इनकम रिसीव्ड इन एडवांस. फॉर एग्जांपल आपको इंटरेस्ट मिल गया एडवांस में, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में. देखो समझने Sir, की why बात is income received a liability? ओके ओके, आई विल एक्सप्लेन यू दिस. पहले अभिषेक का डाउट क्लियर करता हूं, फिर प्रतीक्षा का भी करता हूं. अभिषेक देख बेटे, ये थोड़ा ध्यान में रखो, इनकम हाँ. रिसीव्ड इन एडवांस है ये. आप बात कर रहे हो प्रीपेड एक्सपेंसेस की. अगर एक्सपेंस आपको आपने पहले पे किया है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में माइनस होएगा. फॉर एग्जांपल सैलरी, सैलरी एक्सपेंस होता है. अब हम डिस्कस कर रहे हैं इनकम. मैं एक बात आपको समझाऊं. फॉर एग्जांपल मैं एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊं. प्रॉफिट एंड लॉस में देखो बेटे, आप समझो बात को. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमको एक एडजस्टमेंट है. फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट हमको मिला. आपको मालूम है क्रेडिट साइड में इनकम होती है. इंटरेस्ट हमको मिला है 2000 रुपीज. समझो ऐसा, प्रॉफिट एंड लॉस में इंटरेस्ट रिसीव्ड है 2000 रुपीज. और नीचे एक एडजस्टमेंट दिया है बेटे, वो बोल रहा है इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस इज ₹500. बात समझो बेटे, ये वाला पॉइंट हम पढ़ रहे हैं. बोल रहा है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस. देखो अब आपको इंटरेस्ट मिला है 2000 रुपीज और नीचे एडजस्टमेंट बोल रहा है 500 इन एडवांस. तो देखो अब इसमें क्या इफेक्ट आएगा. पहला इफेक्ट तो आएगा कि आप लेस करोगे, एडवांस मिला है ये आपकी इस साल की इनकम नहीं है, 500 लेस करोगे और आउटर कॉलम में लिखोगे 1500. तो अभिषेक बेटे, ये हमने कहां से लेस किया? लेस प्रॉफिट एंड लॉस Credit अकाउंट, side. क्रेडिट साइड में. अब बेटे समझ में आया आपको? क्रेडिट. Yes sir. हाँ, ध्यान में रखना प्लीज है. और ये मैं शायद Okay. रिकॉर्ड मैंने स्टार्ट किया है, शायद रिकॉर्ड हो रहा है ये, या तो आप बाद में रेफर भी कर सकते हो. मैं ये शायद ये वाला वीडियो यूट्यूब में अपलोड करूंगा, इंपॉर्टेंट है, यूजफुल है काफी स्टूडेंट्स के. नेक्स्ट देखो बेटा, और नेक्स्ट इफेक्ट इसका किधर आएगा. अब कोई बोल रहा था, प्रतीक्षा बोल रही थी कि सर ये हमको इनकम एडवांस में मिला है तो ये हमारी लाइबिलिटी कैसे हुई. अब मैं आपको समझाऊं बेटा. फॉर एग्जांपल मैं आपका टीचर हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं. आपने मुझे 12th का फीस पे किया 1500 और आपने मुझे 500 बोला सर ये मेरा जब नेक्स्ट ईयर FY BCom में मैं आऊंगी तो उसका 500 आप रख लो. लेकिन मैं तो इस साल का अकाउंट बना रहा हूं, तो नेक्स्ट ईयर की इनकम जो मेरे को 500 मिली है वो मैंने माइनस कर दिया, वो मेरे इस साल का इनकम है नहीं. तो ये 500 रुपीज जो मुझे अभी मिला ये तो मेरे लिए लाइबिलिटी है ना. लाइबिलिटी इसलिए है क्योंकि अभी तो नेक्स्ट ईयर आया ही नहीं है और नेक्स्ट ईयर की फीस मैंने ले ली, मैंने पढ़ाया तो नहीं है, तो ये इस साल की इनकम तो है नहीं, आगे आने वाले साल की इनकम है और आगे आने वाले साल में मैं पढ़ाऊंगा तब मेरी इनकम होएगी. तो इस साल के लिए ये मेरी हो गई लाइबिलिटी. प्रतीक्षा, इज दैट क्लियर बेटे? Yes, sir. ओके. तो ये वाला हमने किया बेटे, इंपॉर्टेंट वाला है. अब मैं थोड़ा इसमें इरेज करूं और फिर वी विल गो टू नेक्स्ट वन.
from tomorrow onwards we will start next chapter, that is not for profit. Hello, yes. Okay, नेक्स्ट वाला एडजस्टमेंट है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है, इसका दूसरा लेते हैं हम बेटे, ये इनकम रिसीव्ड है। अब ये समझो आप, इनकम इनकम रिसीवेबल, इनकम रिसीवेबल। अभी शर्दुल बेटा आपका टर्न है, आप मुझे बताना इसका 1 मिनट के बाद। हाँ बताओ मुझे शर्दुल, दिस इज इनकम रिसीवेबल। Sir, first effect balance sheet asset side. लिटिल लाउडर। Balance sheet asset side. वेरी गुड, बैलेंस शीट एसेट साइड में आएगा, ये एसेट है। एंड अनदर इफेक्ट P&L account debit side. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट Debit side. no, not debit side, debit side, not in debit side. Now try to understand. Okay guys, listen, just see this one, income received in advance। क्या हुआ, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस मेरा लाइबिलिटी है, वैसे ही इनकम इस साल का मेरा अर्निंग है, मेरे को मिला नहीं है। बेटे मुझे 1 मिनट देना प्लीज। देखो बेटा, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस जो हमको इस साल इनकम मिल गया, अगले आने वाले साल का वो हमारा लाइबिलिटी है, और प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में ऐड करेंगे। इनकम में हमने क्या क्या, इनकम से क्या क्या हमने क्रेडिट साइड से लेस किया। वैसे ही अभी आप बेटा ये समझो कि इनकम रिसीवेबल, इनकम तो वो रिसीवेबल है, तो वो आपका डेबिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस में तो एक्सपेंस होता है, डेबिट साइड में तो एक्सपेंस होता है। तो अगर इनकम रिसीवेबल है तो एक्सपेंस कैसे हुआ, नहीं होगा। तो आप क्या करोगे, फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट है, ₹1,000 interest we have received and 500 he is saying कि is still receivable, एडजस्टमेंट में बोल रहा है is receivable। तो आप ये 500 के 2 इफेक्ट्स क्या करोगे, एक तो आपने बिल्कुल सही बोला सर बैलेंस शीट में लेंगे, एसेट आना है, और दूसरा इफेक्ट क्या करोगे, इनकम रिसीवेबल क्रेडिट साइड में क्या करोगे, आप उसको ऐड करोगे। यू विल ऐड टू अ पर्टिकुलर आइटम इन द क्रेडिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दैट इज हाउ यू विल डू इट। आपने ऐड करोगे इसको, तब आपकी टोटल इनकम आएगी आउटर कॉलम में 1500। शर्दुल बेटा समझ में आया क्या? Yes, sir. Okay, perfect. Guys, from tomorrow onwards, I would want everybody to come on time to the class. उस मामले में मैं थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हूँ, और I expect you guys wait for teacher rather making teacher wait for you. ठीक है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट अभी कौन कौन आया है, और अंकुर हो गया, प्रथमेश, प्रथमेश कैसा है बेटा? अच्छा हो सर। वेरी गुड। जेके कौन है, जेके जय कैसा है बेटा? जय हाउ आर यू जय? ठीक हो सर, ठीक। ओके वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो बच्चे,
हम अभी एक नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं। अच्छा, अभी मुझे नेक्स्ट बताएगा, शर्दुल हो गया। ओम बेटा आप बताना, ओम अभी नेक्स्ट बैड डेट्स। ओम बैड डेट्स, इसके क्या इफेक्ट, दो इफेक्ट होंगे बेटे बैड डेट्स के। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में इसको लिखेंगे। वेरी गुड, एक इफेक्ट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड, क्योंकि ये लॉस है। वेरी गुड, और दूसरा इफेक्ट बेटा बैलेंस शीट में एसेट साइड में से माइनस करेंगे सन्ड्री डेटर्स में से। वेरी गुड, Debtors बहुत ही बढ़िया। बैलेंस शीट में आप क्या करोगे, लेस करोगे डेटर्स में से। ये इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, एग्जाम में आता है। नेक्स्ट अंकुर बेटा आपका टर्न है अभी, आप बताना। थोड़ा इसी से रिलेवेंट ले लेते हैं। Yes. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इसके क्या दो इफेक्ट आएंगे बेटा, समझो इस ये एडजस्टमेंट आया, इसके दो इफेक्ट क्या आएंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के बेटा। एक प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, बहुत ही बढ़िया, P&L डेबिट साइड, और नेक्स्ट और एक बैलेंस शीट में लाइबिलिटी। लाइबिलिटी में क्या करोगे बेटे, माइनस करेंगे। किसमें से, सन्ड्री, सॉरी सर, एसेट में आए, एक मिनट। हाँ एसेट में क्या करोगे, किसमें से माइनस करोगे, सन्ड्री डेटर्स। वेरी गुड, बढ़िया है। एसेट्स में सन्ड्री डेटर्स में से लेस करोगे प्रोविजन फॉर, सेम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एंड बैड डेट्स। रिमेंबर बेटा इफेक्ट दोनों का एक ही जैसे होने वाला है। ओके नेक्स्ट, प्रथमेश बेटा आप बताओ। कल और परसों के क्लास में मैंने देखो ये पढ़ाया भी था, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। देखो सेम वैसा ही है, डिस्काउंट ऑन डेटर्स, तीनों में इफेक्ट है बेटे, याद रखो। बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एंड रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, इसके क्या दो इफेक्ट आएंगे बेटा प्रथमेश। हेलो सर, रिजर्व और प्रोविजन सेम है क्या? रिजर्व फॉर बेटे ये है रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स, ये दोनों एक ही इफेक्ट है दोनों का, इतना मैं हिंट दे देता हूं, लेकिन चीजें अलग अलग है। ये आप रिजर्व कर रहे हो डिस्काउंट फॉर डेटर्स, अब इसका इफेक्ट क्या आएगा, पहला इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड। वेरी गुड, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड में, और दूसरा इफेक्ट बेटा बैलेंस शीट में एसेट। बैलेंस शीट में क्या करोगे बेटे, एसेट में, एसेट में किसमें से माइनस करेगा बेटा, वो आरडीडी से। आरडीडी से नहीं बेटे, सन्ड्री डेटर्स, हम सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स। तो गाइस रिमेंबर, बैड डेट्स मतलब जो पैसा डूब गया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, वी आर डाउटफुल कि ये पैसा डूब सकता है, और रिजर्व फॉर डिस्काउंट, हम रिजर्व रखेंगे डिस्काउंट देने के लिए, डेटर्स को डिस्काउंट देंगे, यार आप ठीक है 10,000 रुपया देना है तो 9,500 ही दे दो, डिस्काउंट दे देंगे, तो बात तो एक ही हो गया, तो लॉस ही है वो भी, तो अगर आप डिस्काउंट भी दे देंगे
बेटे याद रखना, बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, तीनों के इफेक्ट सेम टू सेम है, बोथ द इफेक्ट्स। नेक्स्ट जय बेटे, डेप्रीसिएशन है बेटा, कोई भी डेप्रीसिएशन जय, मशीनरी पे हो, बिल्डिंग पे हो, डेप्रीसिएशन है, इसके बेटे दो इफेक्ट क्या आएंगे बच्चे बताओ। सर एक एसेट्स में से वो मशीनरी में से उसकी वैल्यू कम होगी। वेरी गुड, एक इफेक्ट ये आएगा बैलेंस शीट में, एसेट में, पर्टिकुलर जो एसेट है उसमें से वैल्यू डेप्रिसिएशन का कम होएगा। वेरी गुड बेटा। और दूसरा सर हाँ प्रॉफिट क्या एंड लॉस में आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस में कौन सा साइड में, डेबिट या क्रेडिट? डेप्रिसिएशन खर्चा कौन से साइड में आता है? डेबिट साइड में। वेरी गुड, ओके परफेक्ट, याद रखो बच्चे, ठीक है, डेप्रिसिएशन में आएगा। चलो एक एक क्वेश्चन तो सबसे Sir, पूछ लिया। excuse me. यस प्लीज बेटा, आस्क मी। Sir, then what will be the entry of provision for discount on debtors? प्रोविजन, देखो बेटे, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, फाइनल अकाउंट्स Yes. कर रहे हैं हम अभी, वी आर डूइंग फाइनल अकाउंट्स। तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स में क्या होगा कि डेटर्स कम होंगे हमारे, तो प्रोविजन इज अ लॉस, सो यू विल डेबिट इट। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, प्रोविजन कम होएगा तो डेबिट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, बट यू डोंट हैव टू रिमेंबर द जर्नल एंट्री, you have to remember the effects in the final accounts, and second effect will be less from debtors. Okay. ठीक है बेटा, ओके। next important adjustment we will see is, next turn is who's? रोहिणी। कौन सा ले? फॉर एग्जाम्पल रोहिणी अभी ये लेते हैं, देखो इंपॉर्टेंट वाला ये भी, अगर आपको याद है वी स्टार्टेड विथ टाइप्स ऑफ मेथड्स ऑफ कैपिटल अकाउंट, फिक्स्ड कैपिटल मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर आपको याद है मैंने क्वेश्चन भी कराए इसके ऊपर, दो क्वेश्चन हमने किए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर को इंटरेस्ट मिल रहा है कैपिटल के ऊपर, क्या इफेक्ट आएंगे बेटे इसके दो? रोहिणी। सर वो हमने पार्टनर्स के अकाउंट बनाए ना, उसमें क्रेडिट साइड में ऐड होएंगे और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। पार्टनर्स का, अच्छा हमने फाइनल अकाउंट्स का कोई क्वेश्चन नहीं किया क्या इसके ऊपर? फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन किया है ना बेटे हमने? हाँ सर एक ही question किया है। एक क्वेश्चन किया ना, तो चलो एक ही सही। आज मैं वो सबको वो वाला क्वेश्चन भेजने वाला हूँ, वो यूट्यूब पे जहाँ पे वो चैनल है ना, वो जो लिंक है वो क्वेश्चन में भेजूंगा, प्लीज सब लोग एक बार देखना उसको पक्के से। अब बताओ मेरे को एक इफेक्ट क्या आएगा बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे, रोहिणी? सर वो पार्टनर्स अकाउंट हमने बनाया ना, उसमें क्रेडिट साइड में ऐड होगा ओके एंड प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड में। वेरी गुड, परफेक्टली फाइन। सी गाइस, प्रॉफिट एंड लॉस में ये डेबिट साइड में जाएगा, बिकॉज दिस इज एक्सपेंस, इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो पार्टनर को। और दूसरा जो इफेक्ट है बेटा, आप देखो ये आप जरा समझने की बात है, पार्टनर्स हमने करंट अकाउंट बनाया था, बरोबर ना रोहिणी? है ना बेटा? हाँ, करंट अकाउंट जो पार्टनर्स का था उसके हमने क्रेडिट साइड में लिया था, इफ रिमेंबर क्रेडिट साइड, क्योंकि पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट है उसके अकाउंट में पैसा बढ़ेगा इंटरेस्ट मिलने के बाद, सो करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड में। और अगर आपको याद है तो वो करंट अकाउंट का जो बैलेंस बाद में आया था वो हमने किधर लिया था? बैलेंस शीट में लिया था, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स करंट अकाउंट में लिया था हमने। सो दिस यू शुड रिमेंबर। अगेन वन इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। नेक्स्ट ऐसा ही ले लेते हैं हम एक, ओमकार बेटे आप बताओ नेक्स्ट वन, फॉर एग्जांपल दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। देखो बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स,
बताओ बेटा ओमकार, अगर आपको याद है तो, इफ यू कैन टेल मी। सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। बेटे देखो, अब मुझे एक बात बताओ ओमकार, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, मतलब आप पार्टनर को इंटरेस्ट पे कर रहे हो कैपिटल के ऊपर, आपके लिए खर्चा है डेबिट साइड में। अब बेटा सोचो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कौन देगी, फर्म देगा या पार्टनर देगा फर्म को? पार्टनर देगा सर। पार्टनर जब देगा तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा या क्रेडिट में आएगा? क्रेडिट में आएगा। कौन सा साइड में बेटे? क्रेडिट साइड। वेरी गुड, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड में आएगा बेटे, क्योंकि ये इनकम है फर्म के लिए। और दूसरा इफेक्ट क्या आएगा बेटा? दूसरा इफेक्ट नहीं पता। दूसरा इफेक्ट ये देखो इधर पे, जैसे इधर पे करंट अकाउंट जो है पार्टनर्स करंट अकाउंट, तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में ही आएगा कौन से साइड में? अगर उसके लिए ये इनकम है तो क्रेडिट साइड में आया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उसके लिए एक्सपेंस है पार्टनर के लिए, तो करंट अकाउंट में डेबिट साइड में आएगा। प्लीज रिमेंबर दिस। सर वो करंट अकाउंट क्या है? हाँ बेटा, करंट अकाउंट क्या है? करंट अकाउंट क्या है, मैं आज एक वीडियो का लिंक भेजूंगा बेटे, पढ़ाया है मैंने वो आप देखना उस पे, इसीलिए आज रिवीजन ले रहा हूं मैं, बिफोर वी गो टू अनदर चैप्टर। सो आई एम रिवाइजिंग ऑल द स्टफ दैट वी हैव स्टडीड। अभी मैं अगर करंट अकाउंट आपको समझाऊंगा तो आज का दिन उसी में निकल जाएगा। तो आई विल मेक अ नोट, जो ये पढ़ाया था मैंने ये वाला टॉपिक, उसका मैं आपको यूट्यूब पे वो वीडियो का लिंक भेज दूंगा, वो आप ओपन करके देखना, आपको याद आ जाएगा, सब पढ़ाया है मैंने। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अच्छा, तो ये दोनों जो चीजें हैं ये काफी महत्व की हैं, मीन्स बोथ ऑफ दीज आर इम्पोर्टेंट। और मैंने उसमें वो क्वेश्चन कराया था तो मैंने बोला भी था फ्रॉम एग्जाम प्रोस्पेक्टिव दिस इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको भेजूंगा वो लिंक, आप देखना और फिर पूरा देखना इलस्ट्रेशन, पूरा इलस्ट्रेशन देखना, एक बार फिर से खुद से सॉल्व भी करना, तो आपको ध्यान में रहेगा। नेक्स्ट वी विल सी। तो हम लेते हैं ये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, और या तो ये भी हो सकता है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हो, कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे दे देता है इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन, आपने किसी को लोन दिया या आपने इन्वेस्टमेंट किया या आपने किसी को लोन दिया, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड लोन गिवन। नेक्स्ट टर्न इज प्रतीक्षा। बोलो बेटा, व्हाट विल बी द टू इफेक्ट्स? Sir, so we've given a loan, so it's our liability. ओके, ठीक है, मैं बताता हूं बेटे, सुनो ध्यान से सब लोग। बेटे, व्हेन यू हैव गिवन अ लोन दैट इज योर एसेट, व्हेन यू हैव टेकन अ लोन दैट इज योर लायबिलिटी। आपने इन्वेस्टमेंट किया, जब भी आप कभी देखोगे फाइनल अकाउंट्स में इन्वेस्टमेंट, तो मेरी एक ही बात याद रखना, आप सोचना मन ही मन में इन्वेस्टमेंट मतलब एफडी, फिक्स डिपॉजिट। अब आपने इन्वेस्टमेंट किया मतलब क्या किया, एक एफडी किया, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिला, या आपने किसी को लोन दिया, कोई आपका फ्रेंड को, कोई रिलेटिव को लोन दिया, तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिला, तो दैट इज व्हाट योर इनकम। आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, किसके ऊपर मिल रहा है, इन्वेस्टमेंट के ऊपर मिल रहा है, तो दैट इज योर इनकम। और इनकम है तो किधर जाएगा बेटा? इनकम विल गो वेयर? प्रॉफिट एंड लॉस, व्हिच साइड? क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड, ये हो गया बेटे एक। और दूसरा देखो, आपने इन्वेस्टमेंट किया था, आपको याद है जो आपने लोन
किसी को दिया है या इन्वेस्टमेंट किया है, एफडी किया है, तो वो एफडी में या इन्वेस्टमेंट में वो अमाउंट विल ऐड, that amount will add in the asset side. Investment is your asset, balance sheet, asset side, that amount will add in the balance sheet. I hope this one is clear. Yes sir. इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये बेटे दो इफेक्ट आएंगे, एक बैलेंस शीट में एसेट साइड में जाएगा और दूसरा इफेक्ट किधर जाएगा, दूसरा इफेक्ट जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि इनकम हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में जाएगी. दिस इज इंपॉर्टेंट. ओके, डन. नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल, next one is insured goods. Insured goods destroyed by fire. आपने गुड्स का इंश्योरेंस किया था और वो फायर से जल गया, या अगर याद है आपको, या तो फायर से जल गया, या तो आपने इंश्योरेंस किया था गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर हो सकता है, और एक्सीडेंट हो सकता है, एक्सीडेंट से खत्म हो. एक्सीडेंट, क्या दो इफेक्ट करोगे बेटे इसके? अब इसके मैंने आपको बताया था. इसका नेक्स्ट टर्न इज अभिषेक. अभिषेक बेटा बताओ, ये एक्सप्लेन करो जरा मुझे, हमने किया है ये. अभिषेक मोहिते. Yes, sir. First effect will come in trading account credit side. ट्रेडिंग, वेरी गुड वेरी गुड. एक मिनट रुको बेटा, देखो बेटे, पहला इफेक्ट आएगा ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड में. बहुत ही बढ़िया, शाबाश. And the second effect will be in profit and loss credit side. Insurance claim. प्रॉफिट एंड लॉस विच साइड बेटा? Credit side. क्रेडिट साइड नहीं. हाँ जी, कोई बता सकता है मेरे को? ठीक है, मैं समझाऊं बेटा, कोई बात नहीं. देखो इधर क्या बोल रहा है बेटा, इंश्योर्ड गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर. whenever an adjustment like this will come, this adjustment will come, आपके दिमाग में एक चीज आना चाहिए, इसका एक, यार इसमें 3 इफेक्ट आ सकते हैं. कितने इफेक्ट? 3 इफेक्ट. एग्जांपल देखो बेटा, 10,000 के गुड्स थे, इंश्योरेंस कंपनी ने 8,000 रुपया दे दिया. हमारा 10,000 का गुड्स था, डिस्ट्रॉय हो गया फायर में, इंश्योरेंस कंपनी के पास क्लेम गया. इंश्योरेंस कंपनी ने क्या बोला? बोला बॉस आपका 10,000 का सामान जल गया है, लेकिन आपका जो क्लेम सेटल हो रहा है आपको मिल रहा है सिर्फ 8,000 रुपये. तो हमारा टोटल लॉस कितने का हो गया बेटे? 2,000. रिमेंबर दिस, इट विल बी लाइक दिस. This will be, I will explain you both the possibilities. There might be 2 possibilities. So first possibility is ऐसा, ये हो सकता है कि भाई 10,000 का गुड्स था, इंश्योरेंस कंपनी ने बोला आपको 8,000 देंगे, 2,000. अब देखो इसमें 3 इफेक्ट आएंगे. पहला, अभिषेक ने बिल्कुल परफेक्ट बोला, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा, बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 10,000. परफेक्ट. दूसरा इफेक्ट, अभी जो बेटे हमको जो लॉस हो गया, कितने का लॉस हो गया? 2,000 का लॉस हो गया. तो ये लॉस आएगा, बरोबर बोला अभिषेक ने, करेक्ट बोला, प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट में आएगा, लेकिन क्रेडिट साइड में नहीं आएगा बेटे. वो लॉस तो आएगा आपको डेबिट साइड. दिस विल गो टू डेबिट साइड. और तीसरा, अगर आपको याद है, आप YouTube पे देखा करो, मेरे वीडियोस आप लोगों के लिए डाले फ्यूचर रेफरेंस के लिए, आप कभी खोल के देखा करो फ्री टाइम में. तीसरा इफेक्ट कब आएगा? तीसरा इफेक्ट क्या आएगा? 8,000 रुपीज आपको मिल गया ना, ये जो आपको मिल गया ना बेटे, ये आएगा बैलेंस शीट में, एसेट साइड में आएगा इंश्योरेंस क्लेम. प्लीज रिमेंबर दिस. देयर माइट बी 3 इफेक्ट्स. अब 2 इफेक्ट भी हो सकते हैं. वो कैसे हो सकते हैं?
10,000 रुपए का गुड्स था, इंश्योरेंस कंपनी ने कुछ भी नहीं दिया, 0 दिया, तो हमको लॉस हो गया 10,000 का। तो दो इफेक्ट क्या आएंगे, एक तो आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 10,000, और दूसरा पूरा 10 का 10,000 लॉस हो गया, तो दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा डेबिट साइड में टू गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। ये दो इफेक्ट आएंगे। कुछ मिला ही नहीं, आपको 0 मिला तो बैलेंस शीट में कुछ आएगा नहीं, ऐसे। तीसरा एक और पॉसिबिलिटी, 10,000 रुपए का गुड्स था बेटे, इंश्योरेंस कंपनी ने बोला अरे रे 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 इनको बहुत लॉस हो गया यार, पूरा पैसा दे दो, चलो पूरा ही आपको पैसा मिल गया 10 का 10,000, आपको लॉस कुछ भी नहीं हुआ। पॉसिबिलिटी ये भी हो सकता है, क्या होगा, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 10,000 ट्रेडिंग अकाउंट में, और दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाएगा, पूरा 10,000 आपको मिल गया इंश्योरेंस क्लेम, सॉरी बैलेंस शीट में आ जाएगा पूरा 10,000 रुपीज। प्रॉफिट एंड लॉस में आप कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि आपको लॉस कुछ हुआ ही नहीं। ये ऐसे हो सकता है। बेटा ये समझ में आए बच्चे आपको, गाइस? यस सर। ओके गुड, लेट्स सी नेक्स्ट। ये जो मैंने आपको थर्ड वाला बताया था जहां पे आपका 10,000 रुपीज का गुड्स है, अच्छा ठीक है, अभी ऐसे देखें जरा, मैं आपको एक और एडजस्टमेंट बताता हूँ। फॉर एग्जांपल एडजस्टमेंट ऐसे है, अभी ये देखो क्या था, इंश्योर्ड गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। अब मैं ऐसे बताऊं आपको, अनइंश्योर्ड गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, आपने इंश्योरेंस ही नहीं किया था, अनइंश्योर्ड गुड्स थे, डिस्ट्रॉय हो गए फायर में। अब बेटे इसके इफेक्ट बताओ तो जरा मेरे को। नेक्स्ट टर्न इज ऑफ शरदुल। शरदुल बेटा बताओ। सर फर्स्ट इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। वेरी गुड, ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड में वो तो आएगा ही, वेरी गुड, परफेक्ट। नेक्स्ट। एंड सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। बहुत ही बढ़िया। देखो बेटे इसमें क्या हुआ, इंश्योरेंस आपने कराया ही नहीं था गुड्स का। अगर आपने इंश्योरेंस कराया ही नहीं है तो बैलेंस शीट में इंश्योरेंस क्लेम तो कुछ आएगा ही नहीं, आपको तो पूरा ही लॉस हो गया। तो इफेक्ट तो दो ही आएंगे, 10,000 का सामान जल गया, ट्रेडिंग अकाउंट में गया, और दूसरा लॉस हो गया पूरा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आएगा। बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड। नेक्स्ट, अनइंश्योर्ड गुड्स। अब नेक्स्ट भी ऐसा ही थोड़ा इन्हीं लाइंस पे पूछता हूं। फॉर एग्जांपल एडजस्टमेंट ऐसा है, गुड्स स्टोलन, गुड्स का चोरी हो गया, स्टोलन, बस इतना ही बोला है, गुड्स स्टोलन ऑफ ₹10,000, गुड्स स्टोलन ऑफ ₹10,000, बस ऐसा है समझो। ओम क्या करोगे बेटे, दो इफेक्ट। सर ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में लूंगा। वेरी गुड, ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा क्रेडिट साइड में गुड्स, जैसे आता है ना ट्रेडिंग साइड, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में गुड्स बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, वैसे ही आप लिखोगे बाय गुड्स स्टोलन। वेरी गुड, क्रेडिट साइड में। और दूसरा बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में। वेरी गुड। देखो बेटे सेम जैसा इसका इफेक्ट है, सेम वैसा ही इसका इफेक्ट भी आएगा, गुड्स स्टोलन। अब नेक्स्ट एक और है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। बहुत बढ़िया ओम का, शाबाश ओम, वेरी गुड। नेक्स्ट, अभी बेटे एक और ओम के बाद अंकुर। बेटा मेरे को बताओ यार, आज ये नहीं आया अभिषेक, जो काफी बच्चे एब्सेंट होते हैं, प्लीज एब्सेंट मत हो। नेक्स्ट अंकुर बेटा बताओ, गुड्स, यस सर, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, इसके क्या इफेक्ट आएंगे बेटे बताओ अंकुर। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। वेरी गुड, ट्रेडिंग अकाउंट के, देखो बेटे मैंने आपको बताया है ये 3-4 आइटम है जो हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आते हैं। कौन कौन से? पहला गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, दूसरा गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर,
तीसरा गुड्स स्टोलन, चौथा गुड्स टेकन बाय पार्टनर फॉर पर्सनल यूज। ऑलवेज रिमेंबर, एक इफेक्ट तो ये इसका पक्का ही है चारों का, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। और दो बेटा दूसरा इफेक्ट क्या आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। क्या बोल के लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में इसको? गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल नहीं, और एडवर्टाइजमेंट। वेरी गुड, इसको आप बोल के लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में एडवर्टाइजमेंट। बेटे देखो, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल कंपनी तभी करती है फ्री सैंपल, उनका मकसद होता है उसको सेल्स प्रमोशन एक्टिविटी होती है, एडवर्टाइजमेंट होता है, तो आप इसको एडवर्टाइजमेंट बोल के डेबिट साइड में लिखोगे। वेरी गुड, नेक्स्ट। देखो अभी आ ही गया जो मैं आपको पूछ रहा था। नेक्स्ट इज प्रथमेश, बेटा बताओ, ये वाला है गुड्स withdrawn by partner for personal use। देखो बेटे, पर्सनल यूज, गुड्स withdrawn by partner for personal use। हाँ जी बेटा, प्रथमेश बता बेटे। ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में। बहुत ही बढ़िया। देखो बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा क्रेडिट साइड में, गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर फॉर पर्सनल यूज। एक तो ये आ गया, और दूसरा इफेक्ट बेटे बैलेंस शीट में लायबिलिटी। क्या करोगे लायबिलिटी में? ड्राइंग्स में से माइनस करेंगे। ड्राइंग्स है ये, नहीं ये कैपिटल में से माइनस करेंगे। वेरी गुड, कैपिटल में से। यस यस यस, परफेक्ट, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। देखो बेटे, गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर फॉर पर्सनल यूज, मतलब खुद का पर्सनल यूज के लिए गुड्स विड्रॉ कर रहा है। एंड वी नो कैश विड्रॉन बाय पार्टनर फॉर पर्सनल यूज, गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर फॉर पर्सनल यूज, ये सब ड्राइंग्स होते हैं। तो ड्राइंग्स हमेशा किस में से माइनस करेंगे? आपको याद है, अगर फाइनल अकाउंट्स का प्रॉब्लम सॉल्व करने के टाइम पे 3 टिक हमेशा करना है, इसीलिए करना है। ड्राइंग्स अगर है इन द बैलेंस शीट, यू विल डिडक्ट फ्रॉम द कैपिटल। बैलेंस शीट में कैपिटल में से माइनस करोगे, डिडक्ट फ्रॉम कैपिटल एज ड्राइंग्स, यू विल कॉल इट एज ड्राइंग्स। वेरी गुड। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट टर्न इज ऑफ जय। जय मेरे को बताना बेटा, अनरिकॉर्डेड परचेस। हमने परचेस किया है, हमने परचेस किया था एक 5,000 रुपए का, लेकिन हम भूल गए। हमने परचेज है ना, हमने परचेज किया, लेकिन हम परचेज को रिकॉर्ड करना बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भूल गए। तो बेटे बताओ अब क्या करो? जय सर नहीं मालूम। ओके ठीक है बेटा, मैं आपको समझाता हूं। एक तो इफेक्ट ये करोगे, समझो आप परचेज, आपने 5 नीचे एक एडजस्टमेंट दिया है आपको, और एडजस्टमेंट ऐसे समझो, एडजस्टमेंट नंबर 4 बोल रहा है परचेज ऑफ ₹500 नॉट रिकॉर्डेड, ऐसा बोल रहे, रिकॉर्ड नहीं किया परचेज ऑफ 500। तो क्या करोगे? सिंपल, तो आप ट्रेडिंग अकाउंट में तो परचेज है आपका 5 समझो 5,000 रुपीज था, उसमें ये ऐड करोगे नॉट रिकॉर्डेड प्लस अनरिकॉर्डेड परचेज, अनरिकॉर्डेड 500 ऐड कर दिया, और आउटर कॉलम में आपका टोटल हो गया आप परचेज 5,500। सर अनरिकॉर्ड, हाँ जी इधर आएगा ना, बैलेंस में आएगा। हाँ बेटे, बैलेंस शीट के एसेट साइड में भी आएगा ना? हाँ वो सेकेंड इफेक्ट, हम एक एक करके करते हैं, ठीक है। बैलेंस शीट का एसेट साइड में कैसे आएगा? एसेट साइड में नहीं आएगा, मैं समझाऊं। देखो बेटा, आपने परचेज किया है और आपने रिकॉर्ड नहीं किया, तो जो आपका परचेज है उसमें प्लस करो भाई, अनरिकॉर्ड था हमने ऐड कर दिया, परचेज को आपने टिक किया था, परचेज को इनर कॉलम में लेके 500 ऐड करके आउटर कॉलम में 5,500। तो पहला इफेक्ट क्या हो गया बेटा? फर्स्ट इफेक्ट इज
ट्रेडिंग अकाउंट में आप प्लस करोगे किसमें? परचेज में। और याद रखना बच्चे, जो मेरे पास 11th स्टैंडर्ड में बच्चे पढ़े हैं तो उनको मैंने 11th में काफी ये चीजें समझाता था मैं कि भाई ये आएगा, ये आपका इंपॉर्टेंट है, याद रखो। सेकंड इफेक्ट क्या होता है? जब आपने परचेज 500 का किया है तो हम ये एज्यूम करते हैं कि ये परचेज हमने क्रेडिट में किया है। किसमें किया है बेटे? क्रेडिट। तो क्रेडिट मतलब आपने किसी से उधार में लिया, तो उधार में किससे लिया? क्रेडिटर से लिया। जब आपने क्रेडिटर से लिया है उधार में तो आपने मतलब रिकॉर्ड नहीं किया, इसको नॉट रिकॉर्डेड है, तो दूसरा इफेक्ट आएगा आपके बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स में दूसरा इफेक्ट आएगा इसका। समझिए, आपके क्रेडिटर्स हैं लाइबिलिटी साइड में, ये लाइबिलिटी साइड आपका बैलेंस शीट का। क्रेडिटर्स 10,000 रुपीज के, और आपका एक एडजस्टमेंट है परचेज ऑफ 500 नॉट रिकॉर्डेड। तो दो इफेक्ट क्या आएंगे? पहला, हम तो परचेज में ऐड करेंगे, और दूसरा हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि हमने क्रेडिट परचेज किया है, तो क्रेडिटर्स में ऐड करोगे और 500 रुपया जो आपने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि आपने पैसे देने हैं। तो अनरिकॉर्डेड परचेज 500, तो आपके आउटर कॉलम में जाएगा 10,500 रुपीज। ये मैं आपको इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। ओके, तो ये दो इफेक्ट आएंगे। जय, समझ में आया क्या बेटा ये आपको? हाँ सर, आया है। ओके, ठीक है, वेरी गुड, ये हो गया। नेक्स्ट वाला देखेंगे बेटा। नेक्स्ट सेम वैसे ही लेते हैं, थोड़ा अनरिकॉर्डेड। हमने परचेज देखा पीछे, अब हम देखते हैं अनरिकॉर्डेड सेल्स। आपने सेल्स किया है लेकिन आप भूल गए, सेल्स को आपने रिकॉर्ड नहीं किया, मतलब समझो 1,000 रुपीज का सेल्स था, आपने वो रिकॉर्ड करना भूल गए। कोई एक कस्टमर को आपने मिस्टर प्यारा को आपने 5,000 रुपीज का सेल किया और आप उसका वो रिकॉर्ड करना भूल गए, 1,000 रुपये का सेल किया आपने। अब कैसे उसका इफेक्ट करोगे? और नेक्स्ट टर्न रोहिणी बताओ बेटा। सर ट्रेडिंग अकाउंट में हम सेल्स में ऐड करेंगे। एक मिनट, वेरी गुड। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या करोगे भाई? आपने रिकॉर्ड नहीं किया है, ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स में आप करोगे प्लस, बरोबर है। और दूसरा इफेक्ट क्या आएगा बेटे? एंड बैलेंस शीट में डेटर्स में ऐड करेंगे। बहुत ही बढ़िया। आपको मालूम है जब आप सेल करते हो तो हम एज्यूम करके चलते हैं कि भाई क्रेडिट सेल्स, रिमेंबर दिस। तो क्रेडिट सेल्स मतलब जिसको आप बेच रहे हो तो उससे पैसा आना है, और जिससे पैसा आना है उसको तो डेटर्स बोलते हैं। तो आपने रिकॉर्ड नहीं किया था तो डेटर्स में ऐड करोगे, बैलेंस शीट में डेटर्स में आप ऐड करोगे। बहुत ही बढ़िया बेटा, शाबाश, वेरी गुड। नेक्स्ट, ये एक मैंने आपको बताया था, और ये इंपॉर्टेंट है। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड, इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, एग्जाम में काफी बार आता है। बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड। अब देखो बेटे, बिल्स रिसीवेबल तो मालूम ही आपको एसेट होती है, और मैंने आपको हिंट दे दिया। अब मुझे कौन बताएगा? नेक्स्ट टर्न ओमकार, बताओ बेटा, बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर। ओमकार। हाँ सर, एक मिनट। हाँ, सोचो, यस, नो प्रॉब्लम, यू कैन टेक 2 मिनट्स।
सर पहला प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड रॉन्ग बेटे, नहीं। हाँ जी, कोई बता सकता है ये? सर बैलेंस शीट में से एसेट में से डेटर्स में ऐड करेंगे। एक मिनट। पहला इफेक्ट है बैलेंस शीट में ऐड करेंगे डेटर्स में, एंड सेकंड इफेक्ट ओके, सेकंड इफेक्ट बिल्स रिसीवेबल में से माइनस करेंगे। एंड बिल्स रिसीवेबल में से माइनस करेंगे, बैलेंस शीट के बिल्स रिसीवेबल में से माइनस करेंगे। बहुत ही बढ़िया। इसीलिए एज अ टीम हम लोग बहुत बड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली हम एज अ टीम फाइनल एग्जाम लिख नहीं पाएंगे, वो आपको अकेले लिखना है। ठीक है, एक ने एक बताया, एक ने एक, वो बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। अब मैं ये बेटे आपको एक बार समझाता हूँ बेटा, समझाता हूँ मैं, ये समझाऊंगा, फिर से समझाऊंगा। देखो बेटा, आप जरा लॉजिक समझो। बिल्स रिसीवेबल, मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं। एक, दो, तीन, चार, 5 लोग हैं। ये पांचों बंदों से मुझे 5-5 हजार रुपया आना है। 5,000 आई हैव टू गेट फ्रॉम दिस 5 पीपल। और मेरे पास ये पांचों का एक बिल्स रिसीवेबल है। बिल्स रिसीवेबल क्या होता है? बिल होता है बेटे, बिल ऑफ एक्सचेंज। वो आपका चैप्टर नंबर 7 या 8 है। फॉर द टाइमिंग आप ये समझो कि इन पांचों का मेरे पास एक चेक है। चेक इन पांचों ने दिया 5-5 हजार रुपए का चेक मेरे को। तो इन पांचों से टोटल मिला के मुझे कितना आना है बेटा? 25,000। अब ये आप समझो, तो बिल्स, दिस इज बिल्स रिसीवेबल। तो बिल्स रिसीवेबल क्या है? एसेट है। और वैसे ही समझो आप मेरे डेटर्स हैं। डेटर्स कौन है मेरे? 3 है। 1, 2 और 3 लोग हैं। इनसे भी ये मेरे कस्टमर्स हैं, इनसे भी मुझे पैसा आना है। और हर एक बंदे से समझो, तीनों से मेरे को आना है 10-10 हजार रुपए, 10,000, 10K। तो मेरे डेटर्स हैं 30,000। अब बेटे आप समझो जरा, बोथ आर एसेट्स, बोथ आर करंट एसेट्स। बिल्स रिसीवेबल मेरी एसेट साइड में आता है, डेटर्स भी मेरा एसेट साइड में आता है। तो हम चाहे तो दोनों को 30,000 प्लस 25,000, 55,000 एसेट बोल के ले सकते हैं ना, लेकिन लिखते नहीं है, कभी अलग अलग लिखते हैं। कैश भी एसेट है, बैंक भी एसेट है, फर्नीचर भी एसेट है, मशीनरी भी एसेट है, सबको अलग अलग लिखते हैं ना, क्लासिफिकेशन करते हैं हम। तो वैसे ही बिल्स रिसीवेबल और डेटर्स दो अलग एसेट्स, दोनों में डिफरेंस समझो आप क्या है। बिल्स रिसीवेबल का मतलब है हमारे पास बिल ऑफ एक्सचेंज, या समझो फॉर द टाइमिंग आप समझो इनका चेक है हमारे पास, 5-5 हजार के, ये पांचों के हैं। और डेटर्स में जो होता है हमारे पास कोई चेक वेक, बिल्स रिसीवेबल, बिल ऑफ एक्सचेंज वगैरह कुछ भी नहीं है। ये सिंपल डेटर्स है, मतलब इनसे पैसा आना है ये दे देंगे। लेकिन इन लोगों के बारे में ऐसा नहीं है, इनसे पैसा आना है दे देंगे नहीं है। ये तो पैसा देंगे, लेकिन इनका हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट भी है जिसको बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज, वो है हमारे पास इनका। अब इसमें से क्या हो गया? इसमें से बोल रहा है कि बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड एडजस्टमेंट है। समझो ये जो ये एक बंदा है ना, ये एक बंदा मिस्टर ए, ये इसका एक बिल था हमारे पास ए का, इसका हमने बिल डाला, प्रेजेंट किया, और वो बिल डिसऑनर हो गया। अब बिल डिसऑनर होने का मतलब होता है आपने जैसे फॉर एग्जांपल चेक बैंक में डाला, सामने वाले के खाते में पैसा नहीं था और आपका डिसऑनर हो गया। वैसे ही बिल प्रेजेंट किया और डिसऑनर हो गया। अब देखो बेटे, इसका ए का जो बिल था 5,000 रुपीज का, वो तो ऑनर हुआ नहीं, डिसऑनर हो गया। मतलब क्या? बिल कैंसिल हो गया। तो ये बिल्स रिसीवेबल का जो ग्रुप था उसमें से ये ए बाहर निकल गया।
ए आ गया बाहर, क्योंकि इसका बिल तो अब कैंसिल हो गया, तो इसकी बिल हो गई कैंसिल, ये अब रहा ही नहीं, इसमें बाहर आ गया। लेकिन अब ए से पैसा तो आना है ना, पैसा तो आना है, पैसा तो हम लेंगे ना ए से, तो इसको उठा के हम डालेंगे डेटर्स के ग्रुप में, डेटर्स के ग्रुप में। कितना? 5000। पैसा तो आना है, लेकिन ये अब ए हमारा बिल्स रिसीवेबल नहीं रहा, क्योंकि इसकी जो बिल ऑफ एक्सचेंज थी वो डिसऑनर। तो हम क्या करेंगे? बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर। क्या करोगे? बिल्स बैलेंस शीट में बिल्स रिसीवेबल वो भी एसेट है, उसमें से कर दोगे माइनस, जैसे मैंने यहाँ इसको बाहर निकाल दिया। लेकिन पैसा तो आना है, डेटर तो है, तो डेटर्स में कर दोगे उसको प्लस, और ए को हम डाल देंगे डेटर्स। ऐसे बेटे इसका इफेक्ट आप प्लीज थोड़ा ध्यान में रखो, समझने की कोशिश करो, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। मैं एक बात और आपको सिखाऊं, इसी से रिलेवेंट एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, एक बंदा है, ठीक है, इसका कैश इसके पास 1 लाख है, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड है 1 लाख रुपया, और इसका कैश एट बैंक है, समझो 2 लाख रुपया। बेटे जरा समझना, अब अगर आप बैलेंस शीट बनाते हो तो एसेट साइड में कैश इन हैंड भी दिखाओगे और कैश एट बैंक भी दिखाओगे। कैश इन हैंड आप दिखाओगे 1 लाख और कैश एट बैंक आप दिखाओगे 2 लाख। अब देखो बेटा हुआ क्या, 2 दिन के बाद ये बैंक में गया और इसने क्या किया, जो इसके पास कैश 1 लाख रुपया था ना, उसमें से 50,000 रुपया इसने क्या किया, 50,000 रुपया इसने निकाल के बैंक में डाल दिया। अब मेरे को बताओ, ये अब इसके पास कैश कितना रहा? 50,000। कैश अब रख कितना रहा इसके पास? सिर्फ 50,000। और बैंक में कितना पैसा हो गया? ये 50,000 बैंक में डाला तो 50,000 बैंक में ऐड हो गया, 50,000 एडेड इन द बैंक, तो कितना हो गया? बैंक हो गया 2,50,000। बात तो वही हो गई, पहले कितना था? एसेट्स टोटल कितने थे? 2 लाख, और 1 लाख 3 लाख था, और बाद में कितना हो गया? कैश कम हो गया और बैंक में 50,000 हो गया, 2.5 लाख प्लस 50,000 3 लाख रुपए। एसेट तो वही रह गया, लेकिन क्या हो गया? आपको मेरी बात समझी? एक कैटेगरी ऑफ एसेट से वो निकल के दूसरा कैटेगरी में चला गया। वैसे ही बेटे ये ऊपर वाला एग्जांपल आप समझो, बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर, हमको भाई बिल्स रिसीवेबल आना था, डिसऑनर हो गया। एक राम ए का, मिस्टर ए का 5,000 बिल डिसऑनर हो गया, इसका बिल अभी कैंसिल हो गया। तो अब क्या करेंगे? ये अब हमारा बिल्स रिसीवेबल तो है नहीं, चलो बिल्स रिसीवेबल से 5,000 निकाल दिया, लेकिन पैसा तो लेना है कि नहीं? इससे लेना, डेटर तो ये है, तो ये 5,000 को उठा के दूसरा एसेट कैटेगरी में डाल दे, डेटर से 5,000 उधर डाल। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वन गाइस। बच्चे समझ में आ रहा है? आया क्या? हेलो Yes, sir.